Hi everyone, a very warm welcome to everyone to another video. And today we are come back with next scene of Act 3 in Macbeth. Today we are going to see Act 3 Scene 3 of Macbeth, which is again a very interesting and a very small scene. Okay, now Act 3 is very small, right? Act 4 is little lengthy. Okay, it is little lengthy. And after that, Act 5 and Act 6, they both will be very small as well. So let's start and let's look at what we are going to see in Act 3, Scene 3. Guys, this is an extremely important scene, extremely important, because as we have seen the graph was like this, right? So we have, first of all, here we have seen the starting of the graph that was known as the exploitation, right? Or the starting of the graph, okay, starting of the drama where the characters has been introduced. Next, here we go for the rising action. Here we go for the rising action. We have seen the rising actions, the like ups and downs, right? Then comes the very important thing, that is climax. Yup. Today we are going to see the climax in the scene as well. Okay, this whole scene shows climax. This is a climax scene. What is climax now? Climax is that point where you face very excitement. Means the audience is very excited. They are excited enough to see what will happen further. This is what we called climax, the most exciting part. मूवी हम देखते हैं, क्यों देखते हैं मूवी, किस जगह देखते हैं? क्लाइमेक्स के लिए देखते हैं कि भाई क्लाइमेक्स कब आएगा. जब क्लाइमेक्स आता है तो हम उछल पड़ते हैं, अरे वाह क्लाइमेक्स आ गया, हीरो ने देखो कैसे मारा है, isn't it? The same we are going to do, same we are going to see the climax over here as well. Then we goes down, which is known as the downing action. Okay, which means there will be the end of the story. Okay, there will be the end of the story, end of the drama. Either there will be a tragedy, either there will be a happiness ending, either there could be many reasons. Like in Macbeth you will see the tragedy, okay, the death of Macbeth at the last. In Merchant of Venice we have seen what? We have seen excitement, like at the last everyone they met up, right? Banquo, Bassanio, all Portia and all, right? So this was all the graph I have explained to you again. So this scene is having the, let me write with this, climax. Okay, so this is climax. Okay, today we are going to see the climax over here. Now let's revise, let's go back and let's see what was happened in like in Act 3 Scene 2. So you all know in Act 3 Scene 2 we have seen that this Macbeth. Okay, Macbeth is a very tensed, he is very tensed, he is very insecure about Banquo. Banquo के लिए बहुत इनसिक्योर है, बहुत परेशान है कि कहीं प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग Banquo जो है, वो Banquo का जो बेटा है वो फ्यूचर किंग ना बन जाए, है ना. तो इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो दो असैसिनेटर्स होते हैं, दो मर्डरर्स. तो दो मर्डरर्स को वो हायर करता है टू किल, टू गेट रिड ऑफ विद Banquo एंड फ्लेंस. मोर स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो कौन? फ्लेंस. बिकॉज फ्लेंस who will be the further king, who will be the future king. Okay, so according to the witches prophecy, what was said, that the heir of Banquo, the descendant of Banquo will be the future king rather than you, Macbeth. That's why Macbeth is in a very pensive and tensed mood, and that's why he
tried to get rid of with these two fellow. Okay, now he like hired two murderers for them. Okay, even murderers, okay, murderers also said the very strong speeches. Okay, we have seen that in act 3 scene 2 there was the conversation between Lady Macbeth, Banquo, Lady Macbeth's servant, and Macbeth. These three guys are doing the conversation. So we have seen the very important speech where Lady Macbeth says that when you get everything, but you don't get the peace of your mind, then you get nothing. Means when you get what you want but have no peace of mind, then you have got nothing but spent everything. These were the speeches said by Lady Macbeth, right guys? Next speech was that when he says, the Macbeth at last, he says that we are unsafe, okay, unsafe the while that we must lay our arms in these flattering streams and make our faces visible to our heart, disguising what they are. मतलब क्या कहता है कि जो बैंक्यो है वो सॉरी मैकबेथ है वो कहता है कि हम तब तक अनसेफ हैं जब तक कि हम तब तक सेफ हैं जब तक कि हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं और अपनी स्यूडो फीलिंग्स रिगार्डिंग बैंक्यो को दिखा रहे हैं, तब तक हम सेफ हैं, है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। ओके, मैकबेथ अगेन सेज very important speech, right? He said a very important speech that मैकबेथ क्या कहता है कि जितने भी बैट्स हैं हमारे कैसल में, जितने भी चमगादड़ हैं हमारे कैसल में, उनके उड़ने से पहले, ओके, बीटल इज एन इंसेक्ट, उसके बजिंग साउंड प्रोड्यूस करने से पहले और हिकेट के आने से पहले हमें बैंक्यो को मारना होगा। ओके, सो ये सारी स्पीचेस कहता है मैकबेथ। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्या हो रही होंगी, रिफ्रेशन हो रही होंगी, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो रहा होगा आपका माइंड, है ना, आपको समझ आ रही होंगी किस तरीके से हमने पढ़ा था। ओके, सो द लास्ट स्पीच ऑफ मैकबेथ वाज दैट, वो मैकबेथ कहता है कि जब तक हमारा फाइनल डेट नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा लेडी मैकबेथ। ओके, कहता है कि जब तक हम इस जीत का जश्न नहीं मना लेते तब तक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ओके, और जो तुम्हारी ये जो ब्लडी हैंड्स हैं, इनविजिबल हैंड्स हैं, ओके, ये then we'll with your bloody and invisible hand destroy Banquo's hold on life. He says this and he also says the very important speech that जितने भी क्रोज हैं, जितने भी कौवे हैं, वो सब फॉरेस्ट में चले जाएं और बहुत बुरी तरीके से क्या करें, साउंड प्रोड्यूस करें। ओके, और जितनी भी जेंटल चीज़ें हैं वो दिन में तो सो जाती हैं, बट जितनी भी जो हंटर्स होते हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं, वो रात में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, है ना। ये सारी स्पीचेस कही गई थी मैकबेथ के थ्रू। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना डन दैट अगेन। ओके, सो आई थिंक टिल नाउ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम अपने एक्ट 3 सीन 3 की। एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज़ ए क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स है आपका। एंड क्लाइमैक्स किस लिए है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि क्लाइमैक्स ऐसा क्या है जो इस सीन को बहुत एक्साइटेड बना रहा है। क्या है, देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैकबेथ जो है वो बैंक्यो को मार देता है, 2 असैसिनेटर्स भेजता है, तो जो 2 असैसिनेटर्स होते हैं वो बैंक्यो को मार देते हैं, बट फ्लेंस जो कि उसका बेटा है वो वहाँ से बच जाता है, वो वहाँ से बच के चला जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, सिर्फ वो बच ही तो गया, इसमें कौन सा क्लाइमैक्स आ गया, इसमें हमें तो मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो देखिए मज़ा कैसे आएगा, मज़ा ऐसे आएगा, आप खुद ही सोचिए यार, किंग किसे बनना था, मैकबेथ को। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ द विचेस, अकॉर्डिंग टू द फेट
अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्चून, कौन किंग बन रहा है, फ्लेंस बनना है। तो यहाँ पे मैकबेथ के मतलब फेस पर एक तमाचा पड़ा है, किसके थ्रू, डेस्टिनी के थ्रू। ओके, आप कह सकते हैं नेचर ने मैकबेथ को एक तमाचा मारा है, एक थप्पड़ मारा है, एक स्लैप मारा है। नेचर हैज़ टाइट हिम इन ऑन हिज चीक। क्यों? नेचर भी यही कह रही है कि मेरे आगे तुम्हें झुकना होगा मैकबेथ। और वो झुका भी। देखो, उसने बैंक्यू को तो मार दिया, फ्लेंस को नहीं मार पाया। हु विल बी द रियल किंग ऑफ स्कॉटलैंड इन फ्यूचर, है ना। तो आप यहाँ पे इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेंगे कि जो इंसान है वो नेचर से नहीं जीत सकता। जो आपकी डेस्टिनी में, जो आपकी फेट में, जो आपकी फॉर्च्यून में लिखा है वो तो होकर रहेगा। चाहे अच्छा होगा तो अच्छा लिखा होगा तो अच्छा होगा, बुरा लिखा होगा तो बुरा होगा। ठीक है। नो वन कैन एल्टर देयर फॉर्च्यून, नो वन, देयर एंड समवन एल्स। कोई एल्टर नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। What the God, the great Almighty has written for us, that will happen one or the other day. That will sure happen. No one, even we mortals don't have that much power to change, to alter our fortune. तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है मैकबेथ के लिए, ये एक बहुत बड़ा रिप्लाई है बेसिकली मैकबेथ के लिए not from Banquo or Flens, from the nature, from the Almighty, from the God, that you cannot change the fortune. What I have written in his fortune, in his fate, you Macbeth, who you hell are to change his fortune, है ना। सो ये सारी चीज़ें अभी तक हम देखते आए हैं। ठीक है, अब एक्ट 3 सीन 3 में क्या होगा ये देख लेते हैं। गाइस, ये सीन कहाँ का है? मैकबेथ के कैसल के पास में, चारों तरफ। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज दिस इज़ द कैसल ऑफ मैकबेथ, ये मैकबेथ का कैसल है। ओके, मैकबेथ का क्या है, ये कैसल है। तो मैकबेथ के कैसल के बाहर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। मैकबेथ के कैसल के बाहर बेटा यहाँ पर क्या है, हेयर यू विल सी द पार्क। एक पार्क है, आप सबको पता है पहले के दिनों में जो कैसल्स होते थे, पैलेस होते थे, इवन इन इंडिया ओनली ऑल्सो, लाइक पैलेस के चारों तरफ क्या होता था, पार्क होता था। तो इस तरीके की डेस्टिनेशन यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, थर्ड मर्डरर। जो मैकबेथ है वो थर्ड मर्डरर को इंट्रोड्यूस करता है। अभी तक आपने 2 मर्डरर्स देखे हैं, 2 असैसिनेटर्स देखे हैं पहले वाले सीन में, एक्ट 3 सीन 1 में, और एक्ट 3 सीन 2 में आप 2 मर्डरर्स को देख पा रहे हैं। पर इस बार मैकबेथ ने अपने थर्ड मर्डरर को भी इंट्रोड्यूस किया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया है? इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि वो थर्ड मर्डरर किल कर सके बैंक्यू और फ्लेंस को। ठीक है, नाउ आप सबको पता है कि पहले 2 मर्डरर्स हायर किए गए थे बाय मैकबेथ, पर इस बार थर्ड मर्डरर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? जिससे कि मैकबेथ देखो बहुत चालू है। यहाँ पे थर्ड मर्डरर इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये भी है कि मैकबेथ इवन मर्डरर्स का, जो उनके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जान ले रहे हैं किसी की, राइट, जो उनके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इवन ये सारी बुरे डीड्स। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन। मैंने कुछ बुरा किया, अब जो मैंने बहुत बुरा किया है ना, सपोज मैंने बहुत बुरा कुछ किया है ना, अब आप भी बुरे हैं, तो मैंने जो बुरा किया है, मैं किसी अच्छे को तो नहीं बताऊंगा जो मैंने बुरा किया है, किसी बुरे को ही तो बताऊंगा। बिकॉज यू ऑल नो कि सेम जो होते हैं, यहाँ पे हम फिजिक्स नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी इंग्लिश देख रहे हैं, तो सेम लोग ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्शन बैठता है सेम लोगों का।
सेम थॉट्स वाले लोगों का, सेम चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्शन बैठता है. दिस इज़ द साइकोलॉजी, दिस इज़ नॉट फिजिक्स. ओके, फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होती हैं, बट हम साइकोलॉजिकली देख रहे हैं कि जो हमारा सेम होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं. तो सेम यहीं पर हो रहा है. ओके, कि जो मर्डर है, ओके, जो मैकबेथ है वो थर्ड मर्डरर को इंट्रोड्यूस करता है. क्यों इंट्रोड्यूस करता है? जिससे कि मैकबेथ जो है उसे ये लगता है, ओके, तो थर्ड मर्डरर को इंट्रोड्यूस करता है. इसका मतलब ये है कि इवन मैकबेथ कैन डिसीव हिज टू ऑफ द मर्डरर्स एज वेल. मतलब बैंक जो मैकबेथ है वो मर्डरर्स को भी डिसीव कर सकता है, उन्हें भी धोखा दे सकता है जो उसके लिए इतना भारी काम कर रहे हैं, मतलब बैंकियों को मार रहे हैं उसके लिए, है ना, तो वो उसे भी धोखा दे सकता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ओके, शेक्सपियर ने इसलिए थर्ड मर्डरर को इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि वो बता सकें कि इवन मैकबेथ मर्डरर्स का भी सगा नहीं है, वो किसी का भी सगा नहीं है. ओके, वो किसी का भी सगा नहीं है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्ट 3 सीन 3. ये एक्ट 3 सीन 3 के बारे में था सब कुछ. ओके, इट इज़ हैविंग द क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स क्या है कि जो मर्डरर्स हैं वो बैंकियों को तो मार देते हैं पर उसके बेटे को नहीं मार पाते, क्योंकि जो नेचर है ना, जो फेट है, जो डेस्टिनी है, इट डज नॉट अलाउ, इट डिड नॉट अलाउ टू किल हिम. ओके, so let's find out what will happen in this particular scene. Okay guys, so the scene is of forest again. Sorry, this scene is of castle. Okay, the scene is of palace. Now पैलेस में भी देयर इज़ अ पार्क, जो कि मैंने अभी आपको प्लॉट करके दिखाया था एक डायग्राम. उस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसे इमेजिन करना है. यू नीड टू पॉन्डर ओवर देयर अगेन एंड अगेन. ओके, तो देयर इज़ अ पार्क नियर द पैलेस. एक्चुअली पैलेस के पास में पार्क नहीं है, पैलेस के चारों तरफ पार्क है. ओके, सो देयर इज़ अ पार्क अराउंड द पैलेस. एंटर 3 मर्डरर्स. अब 3 मर्डरर्स की एंट्री होती है. फर्स्ट मर्डरर सेज, बहुत ध्यान से समझेंगे, but who did bid thee ask but who did bid thee join with us. मतलब अब फर्स्ट मर्डरर जो है वो थर्ड मर्डरर से कहता है. थर्ड मर्डरर अभी आया है, मैकबेथ ने अभी ज्वाइन करवाया है उसे. ओके, तो फर्स्ट मर्डरर जब भी देखिए एक गैंग में कोई बढ़ रहा होता है तो उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, किसने भेजा है तुम्हें, है ना, तुम्हें किसने भेजा है. तो यही ये कह रहा है कि तुम्हें किसने भेजा है. बट who did bid means ask. तुमने किससे पूछकर हमारे साथ ज्वाइन किया है, किसने तुम्हें बताया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. देन थर्ड मर्डरर सेज मैकबेथ ने. ओके, थर्ड मर्डरर क्या कहता है, मैकबेथ ने कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूँ. ओके, नाउ सेकेंड मर्डरर सेज that he needs not our mistrust, since he delivers our offices and what we have to do to the direction just. Now the second murderer है वो क्या कहता है, he says कि अच्छा अगर मैकबेथ ने भेजा है तो हमें उस पर मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए. हमें उस पर मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी ओके जब उसने हमें आर ऑफिसेस मतलब जब उसने पहले हमें लाइक ज्वाइन किया था, जब हमें पहली बार इंस्ट्रक्ट किया था तो उसने भी इसी तरीके से लाइक हमें डायरेक्शंस दी थी, हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे. ओके, मतलब कहना चाह रहा है हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमने पहली बार लाइक स्टार्ट किया था, ओके, तो उस पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मैकबेथ ने सेम इसी तरीके से हमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो आज इसे दिए हैं, जो आज थर्ड मर्डरर को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं. सेम इंस्ट्रक्शंस हमें भी दिए गए थे जब हमने पहली बार ज्वाइन किया था. ओके, तो हमें मैकबेथ पे भरोसा कर लेना चाहिए. ओके, हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए. देन फर्स्ट मर्डरर कहता है देन स्टैंड विद अस. The west get glimmers with some streaks of day. Now then first murderer जो है वो क्या कहता है, then
स्टैंड विद अस, मतलब हमारे साथ खड़े रहो, तो फिर हमारे साथ खड़े रहो। ओके, अब वो मतलब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, सिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो फर्स्ट मर्डर क्या कह रहा है कि हमारे साथ खड़े रहो। द वेस्ट येट ग्लिमर्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे, मतलब अभी भी वेस्ट में अभी भी थोड़ी शाम है, अभी भी दिन है ना। स्ट्रीक्स ऑफ डे का मतलब होता है कि अभी भी सूरज की जो रेज हैं वो शाइन कर रही हैं। ओके, येट ग्लिम्स विथ सम स्ट्रीक ऑफ डेज का मतलब है कि वो अभी भी थोड़ी थोड़ी शाइन कर रही हैं, इसका मतलब अभी भी दिन है, दिन ढल रहा है, रात होने वाली है। नाउ स्पर्स द लेटेड ट्रैवलर अ पेस to gain the timely in and near approaches the subject of our watch। और जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी लेट ट्रैवलर्स हैं, ओके, जो भी नाउ स्पर्स, स्पर्स का मतलब आपको पहले भी बताया गया है ना। स्पर्स का मतलब होता है तेज जल्दीबाजी करना, जैसे हम क्या कह सकते हैं, हरी करना। ओके, जल्दीबाजी करना। तो अब फर्स्ट मर्डर कह रहा है कि जल्दी करो, ओके, जल्दी करो। जो लेट ट्रैवलर्स है, लेट ट्रैवलर्स का मतलब है जो रात में लेट चलते हैं, लेट ट्रैवल करते हैं, वो लोग आते होंगे। ओके, जो लेट ट्रैवलर्स हैं वो पहुंचते होंगे अपने घर पर, वो अपने घर पर जा रहे होंगे। ओके, टू गेन द टाइमली इन, मतलब वो उनका भी समय हो गया अपने घर पर जाने का। इन का मतलब होता है घर, एक तरीके से इन इग्लू को कहते हैं। इग्लू, आई होप यू ऑल नो, that is a house of made up of snow, okay, in the northern part basically, okay, in the northern part, in the polar part where the extreme winters used to happen। okay, so कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जल्दी करो, इवन जो लेट ट्रैवलर्स हैं वो भी पहुँचते होंगे अपने घर। ओके, वो भी अपने घर पहुँचते होंगे। देन एंड near approaches the subject of our watch, और हम जो जिसे हम देख रहे हैं, द सब्जेक्ट ऑफ आर वॉच का मतलब है जिसकी हमें तलाश है वो भी आता होगा। किसकी तलाश है, किसकी तलाश है? क्वेश्चनिंग मैं करूँगा आपसे और आपको आंसर देना होगा। किसकी तलाश है? वेरी गुड, बैंक्यू ऑफ फ्लेंस की तलाश है। तो कहते हैं कि जल्दी करो क्योंकि बैंक्यू ऑफ फ्लेंस भी पहुँचते होंगे। अप्रोचेस का मतलब है पहुँचना। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि फर्स्ट मर्डर ये कहता है कि किसने तुमसे कहा, किसने मतलब किससे तुमने पूछा हमें ज्वाइन करने के लिए। देन थर्ड मर्डर कहता है कि मैकपेटनी। देन सेकंड मर्डर कहता है कि अगर मैकपेटनी भेजा है तो हमें उस पर मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो मर्डर है, थर्ड मर्डर है, इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जिस तरीके से हमने दिए थे जब हम पहली बार मतलब अटेंड किया था हमने पहली बार, है ना। देन फर्स्ट मर्डर कह रहा है कि शाम होने को आई है, शाम होने वाली है, और जितने भी लेट ट्रैवलर्स हैं वो भी अपने अपने घर को लौट रहे होंगे। ओके, तो हमें भी बैंक्यू का इंतज़ार करना होगा। ओके, बैंक्यू भी आता होगा। ओके, बैंक्यू भी आता होगा। ही इज़ ऑल्सो नियर। ओके, सो द सब्जेक्ट ऑफ आर वॉच रिफर्स टू बैंक्यू, ये बैंक्यू से रिफ़र किया जा रहा है। ओके, मैं लिख देता हूँ दिस, द सब्जेक्ट, इसका मतलब है बैंक्यू से। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट थर्ड मर्डर कहता है हार्क आई हेयर हॉर्सेस, शांत हो जाओ। अब थर्ड मर्डर जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है वो कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे लगता है बैंक्यू आ रहा है, मैंने उसके घोड़ों की मतलब मुझे उसके घोड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो शांत हो जाओ, मुझे लगता है बैंक्यू आ रहा है। ओके, देन बैंक्यू सेज, अब बैंक्यू आ चुका है, अंदर आ चुका है, एंड ही सेज गिव अस अ लाइट हियर हो, गिव अस अ लाइट देयर हो, मतलब यहाँ पर कोई लाइट लाओ, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, कोई लाइट दो यहाँ पर। मतलब वो ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि अब वो कहाँ आ चुका है, कैसल के अंदर आ चुका है, जो पार्क था वहाँ आ चुका है। ओके, बैंक्यू, तो अब वो चिल्लाता है अंदर कि अरे कोई जल्दी जाओ और लाइट लेकर आओ, अंधेरा बहुत हो गया है। ओके, देन सेकेंड मर्डर, जो सेकेंड मर्डर है वो क्या कहता है, ही सेज देन ओके, then this must then this he the rest that are within the note of expectation already are in the coach।
अब जो सेकंड मर्डरर है वो क्या कहता है कि देन दिस इज ही, सॉरी इट शुड बी इट, ओके, यहाँ पर इट होगा, इट इज ही, द रेस्ट आर विद इन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आर इन द कोर्ट। मतलब मुझे लगता है ये बैंक्यो ही है। देन इट इज़ ही, मतलब मुझे लगता है ही का मतलब यहाँ पे बैंक्यो से है, ओके, मुझे लगता है ये बैंको ही है, बैंको ही आ रहा है, क्योंकि बाकी सब जो हैं, बाकी सारे गेस्ट जो हैं वो मुझे लगता है कि कोर्ट के अंदर है, कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाकी सारे जो गेस्ट हैं वो सब कहाँ पे हैं, इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट के अंदर हैं, कैसल के अंदर हैं मैकबेथ के, ये बैंको ही होगा, ओके। देन फर्स्ट मर्डरर सेज हिज हॉर्सेस गो अबाउट। अब वो क्या कहते हैं कि मुझे लगता है फर्स्ट मर्डरर कह रहे हैं कि तुम्हें उसके हॉर्सेस की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो स्टेबल में है, स्टेबल इज़ द हाउस ऑफ द हॉर्स, ओके, वो स्टेबल में है, उसके हाउस की हॉर्स की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अब वो कोर्ट के अंदर आ चुका है ना, तो उसने अब अपने हॉर्सेस वगैरह सब अपने स्टेबल में, मतलब जो हॉर्सेस का घर होता है जहाँ पे हॉर्सेस को बांधा जाता है वहाँ पर रख दिए हैं। तो फर्स्ट मर्डरर कहता है कि उसके हॉर्सेस भी आ चुके हैं, ओके, वो भी स्टेबल में है। देन थर्ड मर्डरर सेज ऑलमोस्ट अ माइल but he does usually, so all men do from hence to the palace gate make it their walk, okay। now ये थर्ड मर्डर कहता है ऑलमोस्ट अ माइल, मतलब ये तो कैसल से बहुत दूर है, ओके, मैकबेथ तो अभी कैसल से काफ़ी दूर है। ऑलमोस्ट अ माइल का मतलब है कि जो मैकबेथ है, सॉरी जो बैंक्यो है वो बहुत दूर है, ऑलमोस्ट वो माइल पर है, कैसल गेट है उसके बहुत दूर है, ओके। बट ही डज यूजली सो ऑल मैन डू, बट जो बैंक्यो है वो भी सबकी तरह, ओके, सबकी तरह वो भी क्या कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो यूजली ही इज़ वॉकिंग, ओके, वो वॉक कर रहा है यहाँ से, ओके। तो वो क्या कहते हैं दैट, ओके, तो क्या कह रहा है कि ये जो कैसल गेट है ये ऑलमोस्ट बहुत दूर है, ओके, बहुत दूर है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि बैंक्यो जो है, ओके, वो यूजुअली यहाँ से वॉक करके जाएगा, जैसा कि वो करता है हर बार। तो वो हमेशा कैसे जाता है, वॉक करके जाता है, तो वो आज भी इसी तरीके से वॉक करके जाएगा। ऑलमोस्ट अ माइल बट ही डज यूजुअली शो शैल मैन डू, मतलब जितने और लोग करते हैं और लोग भी वॉक करके जाते हैं अब कैसल तक, कैसल के गेट तक, सेम वही बैंक्यो करेगा। फ्रॉम हेंस टू द पैलेस गेट मेक इट दे वॉक, मतलब वो वॉक करके कहाँ जाएगा, पैलेस गेट पे, ओके। देन सेकेंड मर्डर like he shout a light enter बैंक्यो and flames with a torch। अब सेकंड मर्डर कहता है कि देखो लाइट आ रही है वहाँ से, देखो वहाँ से लाइट आ रही है, ओके, उस तरफ से एक लाइट आ रही है, मुझे लगता है बैंक्यो ऑफ फ्लेम्स आ चुके हैं। अब हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमें उन दोनों को ख़त्म करना है, ओके। सो वो कहते हैं अ लाइट, देखो वहाँ से लाइट आ रही है, मुझे लगता है बैंक्यो ऑफ फ्लेम्स आ चुके हैं, ओके। देन थर्ड मर्डर सेज इट इज़ ही, मतलब हाँ ये वही है, ये बैंक्यो है, ओके। थर्ड मर्डर कहता है कि ये तो बैंक्यो है, ओके। देन फर्स्ट मर्डर सेज स्टैंड टू इट, ओके, स्टैंड टू इट का मतलब है गेट रेडी, तैयार हो जाओ, ओके। फर्स्ट मर्डर कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें जैसे ही बैंक्यो आएगा वैसे ही हमें उसे मार देना है। देन बैंक्यो सेज इट विल बी रेन टुनाइट। अब बैंक्यो जो है वो कह रहा है, वो मतलब अपने आप से ही बातें कर रहा है कि लगता है आज रात बारिश होगी, ओके, लगता है आज रात बारिश होगी। देन फर्स्ट मर्डर सेज लेट इट कम डाउन, ओके। देन फर्स्ट मर्डर जो है वो क्या कहता है कि लेट दिस कम डाउन, मतलब होने दो बारिश को होने दो, फर्स्ट मर्डर कह रहा है, ओके। अब यहाँ पर फर्स्ट मर्डर जो है वो अटैक कर देता है बैंक्यो के ऊपर, ओके। जैसे ही बैंक्यो ये कहता है कि लगता है आज रात बारिश होगी, तो पीछे से एकदम फर्स्ट मर्डर अटैक कर देता है, लेट इट कम डाउन, मतलब होने दो बारिश। दे सेट अपॉन बैंक्यो, अब बैंक्यो पे वो क्या कर देते हैं, सेट अपॉन का मतलब है अटैक कर देते हैं, ओके। अटैक, ओके। अब वो बैंक्यो पे अटैक कर देते हैं, ओके। अब वो बैंक्यो पे एकदम से अटैक कर देते हैं। कहीं कहीं पर असॉल्ट भी लिखा हुआ है, दे असॉल्ट बैंक्यो,
है ना, सेट अपॉन की जगह असॉल्ट भी लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, मैं लिख देता हूँ, कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ है, असॉल्ट भी लिखा हुआ है। ओके, कहीं कहीं पर असॉल्ट भी लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है कि बैंक्यू पे अटैक कर दिया गया है बाय द मर्डरर। किसके थ्रू किया गया है, यह अभी फर्स्ट मर्डरर के थ्रू। ओके, फर्स्ट मर्डरर के थ्रू अटैक किया गया है। देन बैंक्यू सेज, ओ ट्रेचरी, फ्लाई गुड फ्लेंस, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, दाउ मेडेस रिवेंज ओ स्लेव। देन अब बैंक्यू जो है वो क्या कहता है, वो एकदम से चिल्लाता है कि लगता है ये लोग ट्रेचरी, ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात, एक तरीके से मिसट्रस्ट किया गया है ना। तो ट्रेचरी मीन्स विश्वासघात, मिसट्रस्ट। ओके, मिसट्रस्ट किया गया है। तो बैंक्यू जो है वो चिल्लाता है अपने बेटे फ्लेंस से कि फ्लेंस भागो, जल्दी भागो, जल्दी अपनी जान भगा के भागो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेचरी हो गई है, यहाँ पर विश्वासघात किया गया है। ओके, विश्वासघात किया गया है। विश्वासघात क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैंक्यू को, है ना, कहते नहीं देर आए पर दुरुस्त आए, है ना। अब क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग गई खेत, तो वही यहाँ पर हो रहा है। अब बैंक्यू को अब समझ आया है कि ये सब किसका किया हुआ है, मैकबेथ का किया गया है, तो इसलिए वो यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रेचरी मतलब मिसट्रस्ट हुआ है यहाँ पर। ओके, पर अब क्या फ़ायदा यार, अब तो तुम्हारी जान चली जाएगी, है ना, पहले ही समझ लेते। सही है ना। तो क्या कहता है, ओ ट्रेचरी, फ्लाई गुड फ्लेंस, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, भागो, जल्दी भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर भागो, जिससे कि तुम बाद में बदला ले सको। दाउ मेडेस्ट रिवेंज ओ स्लेव, मतलब मेरे बेटे तुम जल्दी यहाँ से भागो, जिससे कि तुम क्या कर सको, बदला ले सको। ओ स्लेव, स्लेव का मतलब यहाँ पे विलेन से है, मतलब तुम एक अच्छे विलेन बन के दिखाना है। ओके, जाओ। विलेन यहाँ पे एड्रेस क्यों किया गया है बाई विलेन, विलेन यहाँ पे एड्रेस क्यों किया गया है, विलेन का मतलब होता है ओके, विलेन इसलिए कहा जा रहा है जिससे कि ही कुड बिकम अ विलेन, जिस तरीके से मैकबेथ विलेन बना है। ओके, इस तरीके ऐसे ही विलेन यहाँ पे बैंक्यू फ्लेंस से कह रहा है, जिससे कि वो भी आगे चल के बदला ले सके। तो यही चीज़ बैंक्यू कहता है कि यहाँ पर मिसट्रस्ट हुआ है, विश्वासघात हुआ है, जल्दी भागो फ्लेंस, यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो, जिससे बाद में तुम मेरा बदला ले सको, जो मुझे मारा गया है तुम उसका बदला ले सको, अपने पिता का बदला ले सको। जाओ विलेन जाओ और मेरा बदला ज़रूर लेना। डाइस फ्लेंस स्केप्स, मतलब यहाँ पे डाइस का मतलब है जो मैकबेथ है, जो बैंक्यू है वो मर जाता है, ही डाइज, बट जो फ्लेंस है वो भाग जाता है। ओके, सो बैंक्यू ही डाइज एंड फ्लेंस स्केप अवे। ओके, नेक्स्ट थर्ड मर्डरर। अब थर्ड मर्डरर क्या कहता है, हु डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, मतलब लाइट किसने बुझा दी, है ना, किसने लाइट बुझा दी। हु डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, लाइट किसने बुझा दी, किसने लाइट को बुझा दिया। देन फर्स्ट मर्डरर सेज, वॉज इट नॉट द वे, वॉज इट नॉट द वे, वॉज इट नॉट द वे। अब जो फर्स्ट मर्डरर है वो क्या कहता है कि क्या ये अच्छा तरीका नहीं है, वॉज नॉट द वे मतलब क्या ये अच्छा तरीका नहीं है ना। फर्स्ट मर्डरर ने लाइट इसलिए बुझा दी जिससे कि जो फ्लेंस है वो ज़्यादा दूर भाग ना पाए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, देयर इज रेनिंग, हैवी रेनिंग हो रही है, तो इसलिए जो फर्स्ट मर्डरर है उसने लाइट बुझा दी जिससे कि फ्लेंस जो है वो ज़्यादा दूर भाग ना पाए। देन थर्ड मर्डरर सेज, ओके, देयर इज बट one town, the sun is fluid। अब यहाँ पर थर्ड मर्डर, बहुत ध्यान से समझेंगे, थर्ड मर्डर कहता है कि सिर्फ अभी बैंक्यू ही मरा है। ओके, सिर्फ अभी वही मरा है। ओके, देयर्स बट वन डाउन, मतलब सिर्फ एक ही मरा हुआ है, जो बेटा है वो अभी भी जिंदा है। बेटा यहाँ पे फ्लेंस से कहा जा रहा है, तो कहता है कि सिर्फ बैंक्यू मरा है, उसका बेटा फ्लेंस अभी भी जिंदा है ना। मतलब उनका काम तो जो मेन था वो तो बच गया यार, फ्लेंस वॉज द मेन पर्सन, वो बच गया। कौन मरा, बैंक्यू मर गया। ओके, तो सेकेंड मर्डर क्या कहता है, वी हैव लॉस्ट बेस्ट ऑफ आवर अफेयर।
मतलब क्या कह रहा है कि हमारा जो मिशन है वो आधा फेल हो गया, आधा कंप्लीट हो गया, आधा फेल हो गया। मतलब हमारा जो मिशन है ओके वो हमारा इनकम्प्लीट रह गया। या मेन कौन था? मेन वॉज फ्लेंस, फ्लेंस वॉज मेन, जिसका मरना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि आगे चल के वही किंग होगा, है ना। आगे चलकर मैकबेथ के बाद वही किंग बनेगा, तो उसका मरना काफ़ी ज़रूरी था, है ना। तो पर वो नहीं मर पाया। तो यहाँ पर सेकंड मर्डर कहता है कि हमारा जो काम है वो आधा अधूरा रह गया। ओके, हमारा जो मिशन है वो आधा अधूरा रह गया। मेन पर्सन तो अभी मरा ही नहीं। मेन पर्सन जो था, जो मेन पर्सनैलिटी थी, वो तो अभी मरी ही नहीं। देन फर्स्ट मर्डर की लास्ट स्पीच है, विल लेट्स अवे एंड से हाउ मच इज डन। ओके, अब जो फर्स्ट मर्डर है वो कहता है कि अच्छा चलो मैकबेथ के पास चलो, वेल लेट्स अवे एंड से, और मैकबेथ से कहते हैं कि कितना काम हो चुका है। चलो मैकबेथ के पास चलो, उसे बताते हैं कि कितना काम हो चुका है। उसे बता तो दें कि हमारा जो मिशन है वो इनकम्प्लीट रह गया, बैंक्यू मर गया पर फ्लेंस जो है वो बच गया, है ना। और यहीं पर हमारा जो सीन है वो भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत छोटा सा सीन था, बहुत प्यारा सा सीन था। बेसिकली दिस वॉज अ ग्रेट क्लाइमेक्स, है ना। बहुत ग्रेट क्लाइमेक्स था। आपने देखा कि किस तरीके से एकदम से बैंक्यू को मार दिया जाता है और फ्लेंस यहाँ से उड़ चलता है, बच जाता है ना। और बैंक्यू क्या कहते हैं कि तुम भागो मेरे बेटे, जिससे बाद में तुम मेरा बदला ले सको। तो आई होप आपको ये जो सीन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लव दिस सीन, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। इसके बाद हम एक्ट 3 सीन 4 देखने वाले हैं। अब इसमें बहुत मज़ा आएगा। इसमें क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि बैंक्यू जो है वो मर चुका है ना। अब एक्ट 3 सीन 4 में मैकबेथ को बैंक्यू का भूत मिलेगा। उसको कौन मिलेगा? गोस्ट मिलेगा। Okay, we shall see the ghost of Banku in our further scene. Okay, so hope the scene was clear to you, and if you love this video, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe the channel, press the bell icon. Okay, thank you guys for being there, so lovely. Thank guys, bye guys.